چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے، وہ ظالم صرف اپنے ہاتھ کا پتھر بدلتا ہے۔ نہ چہرہ ہی بدلتا ہے، نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے، نہ چہرہ ہی بدلتا ہے نہ وہ تیور بدلتا ہے، وہ ظالم صرف اپنے ہاتھ کا پتھر بدلتا ہے۔ اور شعر ہے، بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں، بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں، پرندہ کوئی دیکھا ہے جو اپنا گھر بدلتا ہے؟ بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں انسانوں کی بستی میں، پرندہ کوئی دیکھا ہے جو اپنا گھر بدلتا ہے۔ اور شعر ہے، جو ہم نے اپنی آنکھیں پھینکتی ہیں اس کے قدموں پہ، جو ہم نے اپنی آنکھیں پھینکتی ہیں اس کے قدموں پہ، سو اپنی آنکھیں ہر ایک گام پر دلبر بدلتا ہے۔ تو یہ جو ہماری دلبری ہے عوام کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ، یہ نہیں ختم ہو سکتی۔ وطنیت اور ہماری پاکستانیت اور سب سے پہلے انسانیت۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، آج میں نے سوشلزم کے، کمیونزم کی نئی ڈیفینیشن سنی ہے، خدا کسی ڈیفینیشن دشمن کا خدا کا شکر ہے ہم کو شعور آیا ہے، پتا چلا ہے ہمیں دوست اور دشمن کا، وہ جن کو اپنا محافظ سمجھتے آئے تھے وہی چراغ بجھاتے رہے ہیں آنگن کا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جو بات شک میں تھی اب وہ یقین میں بدلی، محافظوں نے ہمیں کیسے کتنا لوٹا ہے، ہماری آنکھیں ہیں خوابوں کے بے کفن لاشیں، ہماری فکر کی پوروں سے خون پھوٹا ہے، ہماری فکر کی پوروں سے خون پھوٹا ہے، ہمارا حق ہے کہ ظلم کرنے والوں سے سوال پوچھیں گے، ان کے جواب مانگیں گے۔ دیوار تلک قبر میں کوئی عزادار کہاں جاتا ہے اور مجھ سے لڑتا ہے، وہ ہر بار گلی کوچوں میں مجھ سے لڑتا ہے، مولانا مجھ سے لڑتا ہے، وہ مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار، اور گلی کوچوں میں جنگ لڑنے میرا سالار کہاں جاتا ہے، مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار، گلی کوچوں میں جنگ لڑنے میرا سالار کہاں جاتا ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ جب کڑی دھوپ میرے جسم کو جھلساتی ہے، جب کڑی دھوپ میرے جسم کو جھلساتی ہے، تب تیرا سایہ دیوار کہاں جاتا ہے۔ مجھ پر ظلم کرو، جو چاہے مجھ پر ظلم کرو۔ اور یہ اس کا آخری بند ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جب 10 اپریل 1986 میں لاہور میں یہ نظم پڑھی تو یہ آخری بند سب سے پہلے پڑھا، اس میں موت کا ذکر ہے۔ شاید ان کے تحت کچھ شعور میں تھا کہ ایک دن انہیں بھی اپنے بابا کی طرح عوام کی خاطر جان قربان کرنی ہے۔ تو یہ پہلے پڑھا، اس کے بعد ساری نظم پڑھی، اور پھر یہ آخر میں دوبارہ پڑھا کہ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پھندا ہے، میں مرنے سے کر ڈرتا ہوں، میں موت کی خاطر زندہ ہوں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پر ظلم کا پردہ ہے، میں مرنے انشاءاللہ بابر نجمی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ضرور آج کی صدارت سے وہی میں سمجھتی ہوں آج کے دور کے نئی شاعری، ایک ایسا نام پنجابی شاعری میں، انقلاب میں ایسا انہوں نے کام کیا جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، ہمارے نظریات پہ حکومت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا زندگی تو دیتا ہے لیکن تا حیات تک، اس لیے چونکہ ان کے نام، ان کے قول، جیسے ابھی جواہر جعفری نے کہا واقعی، اور جیسے ڈاکٹر جان نے کہا یہ ہے، ایسا ہی ہے، چونکہ ہمارے لفظوں کی پہچان اس کے عمل میں ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو عملی طور پہ بھی زندہ ہیں۔ اور ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ پنجابی کا پسند کرنے بولنا نہیں چاہیے، انہیں سمجھا نہیں چاہیے۔ بابر نجمی ہم سمجھتے بھی نہیں، سکھاتے بھی نہیں۔ ساڈے جو لوگ جو پنجابی لکھتے ہیں تو پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پر پھر بھی میں یقین منوں کہ اہم جو لوگوں کو ویکھ کے پنجابی سی پڑھ دینی بول نہیں دیتا، فادر پنڈت ملا ہے،
जग नू रल के बहन नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने ते साडी अख नहीं खुलती साडे आन सराणे बंदे ने साडी अख नहीं खुलती साडे आन सराणे बंदे ने कुख दा लो भी ले नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने कुख दा लो भी ले नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने ते साडे कोलों थे करवाया गिरजे मस्जिद मंदिर नूं साडे कोलों थे करवाया गिरजे मस्जिद मंदिर नूं अपना थड़ा भी ध्यान नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने अपना थड़ा भी ध्यान नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने ते चुगियां विच भी फेरा पाके वेख लवे चुगियां विच भी फेरा पाके वेख लवे साडी भी तो पीर बना के वेख लवे शेर सुनो चुगियां विच भी फेरा पाके वेख Assalamu alaikum. This is BBG Vinagoindi with a new episode of Writer on the Road. वाला है अरशद मंजूर कैसे खूबसूरत शायरी और मैं अरशद मंजूर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं अरशद मंजूर और अभी तो और कुछ दोस्त अभी भी मैं मुशायरे की निज़ामत करूँ मिसरे की काम तोड़ दूँ तो उसका क्या फ़ायदा होगा तो बीना गोविंदी जी आप सबकी हमारी मजलिस आमला में भी इनका एक साथ ताल्लुक़ है और थी तो निज़ामत के लिए और उन्होंने पहले अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम जिस शख्स के लिए यहाँ मौजूद हैं कि वो हमारी आइंदा आने वाले वक्तों का भी मुहाफ़िज़ है और जब ऐसे शख्स जो ज़िंदा होते हैं खुदारा उनको कभी भी ये ना कहें कि उनको कौन याद करेगा वो मर गए हैं इस तरह के लफ्ज़ ना करें क्योंकि ये हमारी जो बॉडी वेसल है ना इसकी फिक्र ना कीजिए आइडियोलॉजी की और जो हमारी फिजिकल बॉडी के अलावा जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है ना उसका भी ख्याल रखें। तो यकीन मानिए आज की AI की दुनिया में आपको बहुत कुछ बता दिया कि कुरान में जो कुछ था वो आपको बाकी साइंस ने भी समझा दिया क्योंकि जो साइंस का इल्म है वो भी रब का इल्म है। तो इसके साथ आज हम हबीब जालिब जो हमारे अवामी शायर हैं वो हमारे ऐसे शायर हैं जिनको हम याद नहीं कर सकते भुला नहीं सकते वो हर वक्त हमारे साथ है। तो आज हम इस मुशायरे का आगाज़ करते हैं हमारे आज के सदर महफिल की इजाज़त से। सबसे पहले मैं अपने दो अशार जालिब साहब और तायरा जी आपकी बहुत मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप इतनी हिम्मत वाली खातून है और कैसे भूल सकती हूँ जावेद आफ्ताब को जो कि इस नहज पे आजकल के नुस्खा नफ्सी के दौर में जो ऐसे इश्यूज को लेके आगे बढ़ते हैं। तो दो अशार और वो हैं भी हबीब जालिब के नाम पे वक्त करती हूँ। न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। न चेहरा ही बदलता है न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। और शेर है बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की दस्ती में बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की दस्ती में परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है। बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है। और शेर है जो हमने अपनी आंखें फेंकती हैं उसके कदमों पे जो हमने अपनी आंखें फेंकती हैं उसके कदमों पे सो अपनी आंखें का निजाम कर दिलबर बदलता है। तो ये जो हमारी दिलबरी है आवाम के साथ अपने वतन के साथ ये नहीं खत्म हो सकती। वतनियत और हमारी पाकिस्तानियत और सबसे पहले इंसानियत। मैं आपको एक बात बताती चलूँ आज मैंने सोशलिज्म के कम्युनिज्म की नई डेफिनेशन सुनी है। खुदारा किसी डेफिनेशन का आजकल का ज़माना नहीं है सिर्फ इंसानियत का ख्याल रखें तो सब यकीन माने डिविनिटी के पास पहुंच जाएंगे। तो आज इसी से मैंने उनके दो अशार सुनाए हैं तो कोशिश यही करें कि दो नहीं तो आप 4 अशार सुनाएं क्योंकि मैं बीच में अपने 2 अशार और सुनाऊंगी। तो आज हम अपने बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करते हैं और जावेद आफ्ताब ने मुझे पकड़ के नज़ामत के लिए ये भी एक तरीका होता है किसी को बताने का। तो ये उन्होंने मुझे पता इसलिए किया लेकिन मैं हबीब जालिब के नाम ये भी काम करती हूँ उन्हीं के नाम।
तो हमारे पहले आज के एक लंबी लिस्ट तो नहीं है, छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे आपको लग रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे शायर हैं हाजिर शहजाद साहब, ठीक है? अच्छा जावेद आफ्ताब साहब हमारे पास सबसे पहले, अभी इनका तारुफ आप लोग कहते हैं तो करवा देती हूँ, लेकिन अफसाना निगार भी हैं बहुत अच्छे, और लेकिन शायरी तो इनकी कमाल की है। तो हम आपसे अब वो सूरत हाथी तरतीब रहने भी दो, बहुत कितना भिड़ोगे मुझे, बहुत कितना भिड़ोगे मुझे, रहने भी दो, बकिए मेरी जात का हिस्सा नहीं रहे, बकिए मेरी जात का हिस्सा नहीं रहे, मसाहों से लौट रिसने लगा है, बकिए मेरी जात का हिस्सा नहीं रहे, मसाहों से लौट रिसने लगा है, रहने भी दो, रहने भी दो, तुम किसी और कश्ती के मुसाफिर हो, मेरा बात वहाँ और है। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आप हिंदी जाना है, लेकिन जाना तो सबने है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये जिसका आज हम कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है, ये बहुत बड़ा शख्स है। ये लोग जो होते हैं ये कैटलिस्ट होते हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये मरते नहीं हैं, यही माने मौसम की तनज़्ज़ुली और तरक्की में इनका बहुत अहम किरदार होता है, और उसका नाम हबीब जानी होता है। मैं आपको एक बात ही बताती चलूँ कि मुशायरे की कुछ हमने ऐसे रखे कि बहुत मुख्तसर, क्योंकि हमारे पास आज स्टेज पे बहुत अहम और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हम चाहेंगे उनको भी सुनना, तो आप प्लीज मुख्तसर कीजिए मुशायरे में, और 4 या 5 अशार से ज़्यादा ना सुनाइए हो सके। तो अब मैं दावत कलाम देती हूँ मुबीना असीम साहिबा को। तो ये जो लिखी इनकी राइटिंग है, कौन पढ़ेगा? तो मुबीना असीम साहिबा को प्लीज आइए। वैसे मुबैना भी खूबसूरत नाम है, खूबसूरत आपने नया नाम दिया, खूबसूरत। इजाजत से वैसे लिखने में एक ही तरह है, मुबैना भी और मुबीना भी, जब लिखा जाता है तो एक जैसा ही लगता है। मैं आज इस मौके पे छोटी सी एक चंद अशार पेश करूंगी। नेकी करो किसी से तो कुएं में डाल दो, नेकी करो किसी से तो कुएं में डाल दो, आई कज़ा को उसने तबस्सुम से डाल दो। शायर आए हैं और हम उनको दावत कलाम देते हैं। सलीम हसनी साहब, तो आइए और अपना कलाम पेश कीजिए। सादर की इजाज़त से एक नज़्म पेश करता हूँ। नज़्म का उन्वान है ख्वाब तलाशी, जैसे जेब तलाशी हुआ करती है। ख्वाब तलाशी। वो मेरी आंखों में भारी जूतों समेत आकर ये पूछते हैं ये अक्स क्या है। वो मेरी आंखों में भारी जूतों समेत आकर ये पूछते हैं ये अक्स क्या है, कहाँ से आया है, कैसे मंजर से, किन दरीचों से, किन अनासर की रोशनी से वजूद पाकर तुम्हारी आंखों में आ बसा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। वो मेरी आंखों में भारी जूतों समेत आकर ये पूछते हैं ये अक्स क्या है, कहाँ से आया है, कैसे मंजर से, किन दरीचों से, किन अनासर की रोशनी से वजूद पाकर तुम्हारी आंखों में आ बसा है, ये कैसे आंसू हैं। इनके होने का राज दुख या खुशी है कोई, खुशी का आखिर को नाम क्या है, दुखों की नस्ली शनाख्त क्या है। ये कैसे आंसू हैं। इनके होने का राज दुख या खुशी है कोई, खुशी का आखिर को नाम क्या है, दुखों की नस्ली शनाख्त क्या है। ये ख्वाब क्यों है, कहाँ है इनका जवाज़नामा। ये ख्वाब क्यों है, कहाँ है इनका जवाज़नामा। ये कैसे इसमों का, कैसे होठों के नर्म बोसों का हौसला है। महीन पर्दों में तिनके चेहरे हैं,
نقش کیسے ہیں اور جسموں کے نظریاتی خطوط کیا ہیں، سبھی بتاؤ۔ وہ میری آنکھوں میں بھاری جوتوں سمیت آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہوں میں۔ اور دشمن کا خدا کا شکر ہے ہم کو شعور آیا ہے، پتا چلا ہے ہمیں دوست اور دشمن کا۔ وہ جن کو اپنا محافظ سمجھتے آئے تھے وہی چراغ بجھاتے رہے ہیں آنگن کا۔ جو بات شک میں تھی اب وہ یقین میں بدلی، محافظوں نے ہمیں کیسے کتنا لوٹا ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں خوابوں کے بے کفن لاشیں، ہماری فکر کی پھولوں سے خون پھوٹا ہے، ہماری فکر کی پھولوں سے خون پھوٹا ہے۔ ہمارا حق ہے کہ ان ظلم کرنے والوں سے سوال پوچھیں گے، ان کے جواب مانگیں گے۔ ہمارا حق ہے کہ ان ظلم کرنے والوں سے سوال پوچھیں گے، ان کے جواب مانگیں گے۔ جنہوں نے رکھا ہے گروی ہماری نسلوں کو کہ پائی پائی کا ان سے حساب مانگیں گے۔ ہم اپنے ضبط کے اب آخری مقام پہ ہیں، سلام کرنے والے گردنیں دبوچیں گے۔ غریب لوگوں کی حرمت سے کھیلنے والوں، تمہارے جسموں کو ہم مل کے سارے نوچیں گے۔ ہم ایک لقمے کی خاطر کہاں کہاں نہ گرے۔ یہ درد ایسا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں، کہاں کہاں نہیں اپنی ادا ہوئی زخمی۔ معافی مانگنے والوں کوئی معافی نہیں، معافی مانگنے والوں کوئی معافی نہیں۔ معافی مانگنے والوں کوئی معافی نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا تو ایسا رہنمایا واقعی آج بہت خوش ہوں میں ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، ایک ایسا نام، غزل، مرثیہ، نظم، تینوں میں ان کا اپنا مقام ہے اور بہت اچھی غزل کہتے ہیں، بہت اچھا نظم، تو آپ کو میں دعوت دے کر دیتی ہوں۔ جی جالب صاحب کے نام پہ آج کی شام آپ لوگوں کے ساتھ بسر کرنا بڑی خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ آپ نے جو لمبی تقریریں سنی ہے، میں ایک دوسرے کو کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا باپ کتنا بڑا آدمی ہے اور انسانیت کے لیے ان کی کانٹریبیوشن ہے کیا۔ دیکھیے خواب سبھی دیکھتے ہیں، ابھی خوابوں میں نظم سنائی، بلوچستان سے آئے شاعر نے بہت ہی بات سنائی، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے خواب اپنی ذات کے لیے گھومتے ہیں خواب اتنے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے خواب دوسروں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں ویسے ویسے خواب بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جالب صاحب ہوں یا فیض ہوں یا سجاد نہیں ہوں یا حمید اختر ہوں یا قاسمی ہوں، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ان کے اور ہمارے خوابوں میں فرق یہ ہے کہ ان کے خواب پورے معاشرے پہ ہوئی تھی اور ہمارے خواب ہمیں گاڑی لینی ہے، ہمیں گھر بنا کرنا ہے اور ہم نے کوئی مکان بنانا ہے، ہم نے کوئی بزنس کرنا، ہمارے خواب یہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوگ یاد رکھے جاتے ہیں اور اسی لیے آج حبیب جالب کے نام سے یہ اکٹھے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں خواب دیکھے، اس معاشرے کے بارے میں خواب دیکھے۔ اور آپ دیکھیے کہ 1970 تک ایک بات پسند کرتے ہیں تو 2-3 شعر سارا دن تو انقلاب کی باتیں ہم نے سنی ہے، انقلاب کا ایک شعر جو ہے وہ عشقی ہے۔ جیتے جی عشق کا آزار کہاں جاتا ہے، جیتے جی عشق کا آزار کہاں جاتا ہے، زخم بھر کر بھی میرے یار کہاں جاتا ہے، نشان چھوڑ جاتا ہے۔ جیتے جی عشق کا آزار کہاں جاتا ہے، زخم بھر کر بھی میرے یار کہاں جاتا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ میں دریچے سے سرے شام اسے دیکھتا ہوں، میں دریچے سے سرے شام اسے دیکھتا ہوں، پھول لے کر میرا رہبار کہاں جاتا ہے، میں دریچے سے سرے شام اسے دیکھتا ہوں،
भूले चल मेरा रहवार कहाँ जाता है। और दिन निकलते ही हरिकांत मुझे पूछती है, दिन निकलते ही हरिकांत मुझे पूछती है, रात को नदी के उस पार कहाँ जाता है। दीवार तलक कब्र में कोई अदाकार कहाँ जाता है और मुझसे लड़ता है। वो हर बार गली कूचों में मुझसे लड़ता है। मौलाना मुझसे लड़ता है, वो मुझसे लड़ता है वो हर बार। और गली कूचों में जंगल ने मेरा सालार कहाँ जाता है। मुझसे लड़ता है वो हर बार। गली कूचों में जंगल ने मेरा सालार कहाँ जाता है। और आतिश देखिए कि जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, तब तेरा साया दीवार कहाँ जाता है। और अब मैं जिनको बुलाने लगी हूँ, वो तो आप ये देखें कि हमारे जो जमाने में जो सियासत के लीडरान थे वो भी आज भी इनको याद करते हैं। मुझे लगता है मन के भी याद करते होंगे। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। बहुत प्यारे दोस्त मेरे भाई डॉक्टर जावेद साहब, आप हैं और जावेद साहब। बागी हूँ जरूर सुनना है। इंसान समझते हो तो कुछ कहने का हक दो। इंसान समझते हो तो कुछ कहने का हक दो। पत्थर हो अगर तो मेरी दीवार बना दो। इंसान समझते हो तो कुछ कहने का हक दो। पत्थर हो अगर तो मेरी दीवार बना दो। नगमात बगावत के सदा गूंजे के चाहे इस मुल्क के हर चौक में एक दाग बना दो। काबिल एहतराम हाज़रीन, मुझे अभी जावेद साहब के बारे में बात उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खाते हैं। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, और वो जिनके खून की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। वो जिनके खून की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। वो चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और मजहब के जो व्यापारी हैं वो सबसे बड़ी बीमारी है। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था। मजहब के जो व्यापारी हैं सबसे बड़ी बीमारी, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का अर्थ है। उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। जो चाहे मुझ पर जुल्म करे, जो चाहे मुझ पर जुल्म करे। उन जालिम और बदकारों से, बाजार के उन मेहमानों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात वही भी कहते हैं। जो कौम के गम में रोते हैं
और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं। उन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और बड़ेरों से मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जहाँ सांसों पर तासीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के घोर धंधे हैं, जहाँ नफरत के लिए फंदे हैं। जहाँ सांसों पर तासीरें हैं, जहाँ बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के घोर धंधे हैं, जहाँ नफरत के लिए फंदे हैं। सोचो कि ऐसी बस्ती से, इस जुल्म की गंदी बस्ती से मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और ये इसका आखिरी बंद है। मैं हमेशा बताता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब 10 अप्रैल 1986 में लाहौर में ये नज़म पढ़ी, तो ये आखिरी बंद सबसे पहले पढ़ा, इसमें मौत का जिक्र है। शायद उनके तहत शोर में था, एक दिन उन्हें भी अपने बाबा की तरह अवाम की खातिर जान कुर्बान करनी है। तो ये पहले पढ़ा, उसके बाद सारी नज़म पढ़ी और फिर ये आकर दोबारा कि मेरे हाथ में आपका झंडा, मेरे हाथ में आपका झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, मैं बागी हूँ। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात अभी शुरू हुई है और ये बात जारी रहेगी। इंशाअल्लाह। बाबर नजमी भी पैदा होते हैं। जरूर। आज की सदारत से वही मैं समझती हूँ आज के दौर के नवीन शायर एक ऐसा नाम पंजाबी शायरी में, इनकलाब में ऐसा उन्होंने काम किया जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे दिलों पे हुकूमत करते हैं, हमारे नजरियात पे हुकूमत करते हैं। ऐसे लोगों को खुदा जिंदगी तो देता है लेकिन ताहयात तक, इसलिए चूंकि उनके नाम, उनके कौल, जैसे भी जवाहर जाफरी ने कहा वाकई, और जैसे डॉक्टर जलाल ने कहा ये है, ऐसा ही है चूंकि हमारे लफ्ज़ों की पहचान उसके अमल में है। तो ये लोग वो हैं जो अमली तौर पे भी जिंदा हैं। और एक बड़े मज़े की बात ये है कि पंजाबी का किस्म तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, उन्हें समझना नहीं चाहिए। बाबर नजमी लोग समझते भी हैं, सिखाते भी हैं। साढ़े जो लोग मेरे पंजाबी लिखते हैं तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मैं यकीन मनो कि मुझे लोगों को वेख वेख के पंजाबी सी पढ़ दियाँ बोल दियाँ और पॉलिटिक भी नहीं होंगे। तो ये सारा सब तो बड़ा कमाल है। और बाबर नजमी का सब तो साढ़े इससे ऑनर है, साढ़े इससे ऑनर है कि इन्हों का मुजस्मा इंडिया पंजाब यानी मोगा जरा हरनाला के नीचे बनाया गया है और असी भरपूर तालमेल के बीच उन्होंने दावत के खिलाफ। बड़ा शुक्रिया, बहुत देर हो गई, इसलिए था कि मैं सारे लोग पहला सेशन जो है वो माशाल्लाह इतना लंबा हो गया कि बर्दाश्त करना बड़ा वो बड़े लोग हैं कि कैसे मैं पहला जारी थोड़ा डरदा आ गया नहीं वाकई रोग बड़ा है इस सेक्टर दीदी इन्हें मैं फोन किया तुसी आना नहीं तो फिर ठीक है मैं कहने मैं आज एक प्रोग्राम सी जेडी साडी कॉन्फ्रेंस चल रही है हेरिटेज होटल में पंजाबी की कॉन्फ्रेंस सुबह तो शुरू हुई रात को तो मैं उधर साथ यकीन करो कि मैं वो छड़ के तो मैं 4 बजे आया तो मैं ये समझा सी कि 4 बजे मुशायरा 4 बजे तो हम माशाल्लाह 9 बजे वाले के हो गए हम पता है मुशायरा करूँ सी या बाकी सेशन करूँ सी बड़ा जालिब साहब ना मेरा ताल्लुक बड़ा लंबा है। मैं कराची से सन 80
जब ऐसी सुना ना मेरी मुलाकात हुई और इत्तेफाक ना बारह वो फिर सिलसिला लगा बहुत देर तक चलता रहे जाने तो कराची आंदे रहे इकट्ठे रहते रहे और फिर 15-20 साल ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਲਸਾ ਕਰਾਚੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮਖਮ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ में तो मेरा ख्याल है कि और दूसरी गल की मेरी पहली किताब का जो दिवाचा लिखा सी वो जालिब साहब ने लिखा एक और वाक्य दसते हैं कि जालिब साहब कराची मेरी किताब की रूम आई सी अमीर कश्मीरी साहब और बेनजीर अमीर फाइनल हक का एक प्रासी कमरों जमा के साथ जो भी मैं कमीशन का मेंबर सी सोचा लगे कि क्यों सदारत दे बाद या चीफ गेस्ट है वो कौन होना चाहिए वो फिर उन्होंने दादा इस्लामाबाद आए बट प्रोग्राम रखा गया इत्तेफाक ना जिस वे फोन किया लाहौर जालिब साहब का पता किया जालिब साहब का पता लगा कि जालिब साहब बीमार ने और वो नहीं आ सकते फंक्शन बाद में बड़ा अफसोस हुआ तो मैं समझा कि यार आज जो मैं एक किताब का सवेरे फंक्शन करवाया तो लोग कहेंगे कि जालिब साहब का ना देखते थे जरा बंदे ज्यादा बुलवान की कोशिश की इस बंदे ने जालिब साहब का नाम का उन्होंने कितने होना था बाहर आ गया सवेरे उठे अपने दोस्त के साथ मैं कहा हाँ सही प्रोफेसर उनकी पाइसर मैं कहा सही साहब खबर लिखो उन्होंने क्या की मैं खबर लिखो कि वजह जालिब साहब की बीमारी ये जब किताब पंजाब 18 समुंदर का प्रोग्राम रखे ये कैंसर किया जाता है जालिब साहब फिर जो होंगे तो फिर ये प्रोग्राम होगा एक वाक्य ऐसी और मैं अपनी किताब का प्रोग्राम जालिब साहब की वजह तो कैंसर करवा देता 6 महीने के बाद फिर जालिब साहब का मैंने फोन आया मैंने नहीं मुजाहिद बरेलवी साहब ने फोन आया कि यार बाबा ने तो अपनी किताब का प्रोग्राम रख ले क्योंकि मैं आ रहे कि मैं शाम 10 बजे रात रशिया जाना उसे एक बुजुर्ग ने उन्होंने किताब सॉरी मजार का संगे बुनियाद जो है वो रखना है तो शाम बजे तक 7 बजे तक उसे अपना प्रोग्राम खत्म करवाना तो बहुत अच्छा है लिहाजा जालिब साहब आए और उस प्रोग्राम से शामिल हुए तो उस मेरी किताब की रूनमाई हुई रात में 10 बजे जालिब साहब रशिया जेड़े ऐसी तैसी उन्होंने साडा हक नहीं देंदे जेड़े ऐसी तैसी होना दी हम नहीं देंदे खुले बेड़े ऐसी तैसी साडा हक नहीं देंदे जेड़े ऐसी तैसी होना दी हम नहीं देंदे खुले बेड़े ऐसी तैसी होना दी ना ते मेरा भी ये रांझा पाक मैं बुझली वाला नहीं ना ते मेरा भी ये रांझा पर मैं बजली वाला नहीं और तुक्कन तैसे बाबा खेड़े ऐसी तैसी होना दी तुक्कन तैसे बाबा खेड़े ऐसी तैसी होना दी ते साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू साडा हक भी खांदा जावे कौन है तू भुखा उत्ते भुखू गावे कौन है तू भुखा उत्ते भुखू गावे कौन है तू ते तेरे तन ते वर्दी साडे मुंडे दी तेरे तन ते वर्दी साडे मुंडे दी सानू क्या बंदूक उठावे कौन है तू मुकर्रर बाबा जी मुकर्रर तेरे तन ते वर्दी साडे मुंडे दी सानू क्या बंदूक उठावे कौन है तू सानू क्या बंदूक उठावे कौन है तू ते बहर शिशुओं के दिल समुंदर रहने देता दिल समुंदर रहने देता फादर पंडित मुल्ला
दिल समुंदर रह नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने जग नूं रल के बह नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने दिल समुंदर रह नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने जग नूं रल के बह नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने ते साडी अख नहीं खुलदी साडे आन सराणे बनदे ने साडी अख नहीं खुलदी साडे आन सराणे बनदे ने कुख दा लोह भी ले नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने कुख दा लोह भी ले नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने ते साडे कोलों ये करवाया गिरजे मस्जिद मंदिर नूं साडे कोलों ये करवाया गिरजे मस्जिद मंदिर नूं अपना थड़ा भी ढहन नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने अपना थड़ा भी ढहन नहीं दिता फादर पंडित मुल्ला ने ते चुगियां विच भी फेरा पा के देख लवे चुगियां विच भी फेरा पा के देख लवे साडी भी ते पीर मना के देख लवे शेर सुनो चुगियां विच भी फेरा पा के देख लवे साडी भी ते पीर मना के देख लवे ते जिन्ने हाले की समुंदर तकिया नहीं ओनू आखो मैनू आके देख लवे मुकर्रर बाबा जी मुकर्रर जिन्ने हाले की समुंदर तकिया नहीं ओनू आखो मैनू आके देख लवे ते मेरे मुड़ के नाल खलोता ताजमहल मेरे मुड़ के नाल खलोता ताजमहल झूठा वा तो फिर बनवा के देख लो सुनो मेरे मुड़ के नाल खलोता ताजमहल झूठा वा तो फिर बनवा के देख लो तो मेरे दम नल गुट के बेड़ा मकेदा मेरे दम नल गुट के बेड़ा मकेदा मैनू चोपड़ा हटा के देख लो मेरे दम नल गुट के बेड़ा मकेदा मैनू चोपड़ा हटा के देख लो ते तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी नंबरदारा बस्ता पाके देख लो तेरे पुत्र वांगू पुत्र मेरा भी नंबरदारा बस्ता पाके देख लो इसे सुनो साडी एक एक चुग्गी शायरा ने शेर है साडी एक एक चुग्गी एक मुसद्दा है साडी एक एक चुग्गी एक मुसद्दा है सुखन वाला जो कोई भी जाके देख लो साडी एक एक चुग्गी एक मुसद्दा है सुखन वाला जो कोई भी जाके देख लो तो मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने दा मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने का मेरा कोई भी शेर सुना के देख लो मेरा एक एक मिसरा दुख जमाने का मेरा कोई भी शेर सुना के देख लो सारी दुनिया के मजदूरों गैर भी जारी था दर कुछ 12 नसी से लड़ी के विषयों जिन्हें भी 2-4 लोग पदासी मजदूरा लेकिन गैर के दी करी अपनी मैंने अब सानू तरक्की पसंद सोच के सब तो बड़ी गल लोटा ये वे वो मैं दा जिक्र कर दें शायद अपनी गल नहीं करते लोगों की गल करते इस वास्ते कि सारी दुनिया के मजदूरों फजले शिकल दोपहर शामी सारी दुनिया के मजदूरों फजले शिकल दोपहर शामी मुर्दा बच मशीना दे जाना पावन वाले लोग को मिट्टी सोना करने लोग को फैक्ट्री भूखे मरने लोग को सारी दुनिया के मजदूरों फजले शिकल दोपहर शामी मुर्दा बच मशीना दे जाना पावन वाले लोग को मिट्टी सोना करने लोग को फैक्ट्री भूखे मरने लोग को मेरा एक नाम सुनो पूरे नाम ध्यान सुनो मेरा एक इनाम सुनो पूरे नाम ध्यान सुनो सनिया थोड़े रोंगे कईया कांडी तेसी गैती छड्डो सनिया थोड़े रोंगे कईया कांडी तेसी गैती छड्डो डांगा सोते शंकर शंते इतना होते चली लोगे मेरे वाले लाके नटो सारी दुनिया के मजदूर डांगा सोते शंकर शंते इतना होते जो भी लोगे मेरे वाले लाके नटो मैंने आके
मारो कुटो मेरी आके सभी कुटो मेरे चिट्टे कागज पाड़ो लिखिया सोपे लिखता साड़ो मेरा जुर्म सुनो मैं तो मैं थोड़े छोटे थोड़े बात की गल नहीं करता मैं थोड़ा मुजरिम